کھڑا ہوں. یہ خدا کے فضل سے میں اپنے سامنے 4 مہینے کے بعد کھڑا ہوں. خدا او نہیں بھائی، اوکے پتہ نہیں، اوکے یہ پتہ نہیں، اوکے. دھماکہ ہو رہا ہے، دھماکہ کدھر ہو رہا ہے؟ بم پھٹ رہا ہے، دھماکہ. شکر ہے آپ کو سننے والا کون ہے، اور میں آپ لوگوں کو کئی پیارا منہ کو دیکھ کر بڑی خوش ہوں. خلا میں کدھر نہیں لکھنا، رونے والے کے ساتھ رو، لیکن خوش کرنے والا کے ساتھ خوشی مناؤ، اور خوشی مناؤ. اوکے. میں تو پچھلے اتوار دن نہیں تھا، آپ لوگ بھی پچھلے اتوار میں سنا تھا. یہ بھی میرے بڑی اچھا پیارا بائبل تو خدا کی کلام ہے. کدھر بھی پڑھتا ہے ہم خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، اگر سننے کے لیے ہمارا دل صاف ہو. اگر دل کے اندر برے ہے، کلام میں سے ٹکر کھائے گا. اگر دل صاف ہے پھر ہم خدا کے کلام زندگی ہے سن سکتے ہیں. میں سنا تھا یہ بہت اچھا اس کے اندر پیغام ہے. 3 کی 5واں باب. ہاں، نمان کوڑی تھا، ان کی ایک چھوٹی لڑکی ہے، ان کے گھر میں پکڑ کر دیکھ رہا تھا، قیدی کر لے کر آیا تھا وہ بادشاہ. لیکن وہ بچی خوشخبری سنایا تھا، خوشخبری. اور وہ ایسے دل کے اندر دعا بھی ہے، خاص کہ میری آقا اپنے عورت جس کے ساتھ وہ کام کرتی تھی، خاص کہ میری آقا میرے ملک کی ایک نبی ہے، ان کے پاس جاتا ہو وہ ان کی اس بری خلاق ہونے والا بیماری سے صاف ہو سکتا ہے. بس خوشخبری، فل گاسپل ہے، یہ فل گاسپل ہے. ان کے پاس آج ملتے ہو، ہمارے آج بھی ان کے کہتا انٹرمیڈیری کہیں نہیں چاہیے، درمیانی لوگ نہیں چاہیے. ڈائریکٹ آ کر ان کے پاس ملاقات ہونا چاہیے. ان کے پاس آتے تک کے مندے بوجھے تبے سب لوگ میرے پاس آؤ، میں دوں گو اور مجھ سے سیکھو. آگے کہہ رہے بھائی؟ ہاں بھائی رشید، مجھ سے سیکھو. میں فرتن ہوں، دل کی فرتن ہے بھائی. فرتن لوگ کو آ کر فرتن آ کر مل جائے گا. یہ اس کا بڑی بات ہے. ہم سب پرابلم آتے ہیں، میں مغرور اس میں پرابلم آتے ہیں. میں بھی اس وقت میں بول کر اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پرابلم ہوتا ہے. یہ ہے سب برائی کی جڑ ہے. لیکن وہ آدمی کئی جگہ پر آ کر اپنے ٹائم کو پیش کیا تھا، سونے چاندی لے کر آ، خالی ہاتھ آ کر برکت لے کے جا. یہی بات ہے. یہ ہے خوشخبری. آپ پچھلے اتوار آپ ادھر سن رہی تھی، بڑے پیارا پیغام ہے، اس کے اندر پوری گاسپل بھی ہے. اور میں بھی اسی دن میرے بوجھ نہیں تھا، ایک ادھر سے پیغمبر آ گیا تھا کلام سنانے کے لیے. میں اسی وقت ایسا میٹنگ لیڈ کر رہا تھا، میٹنگ لیڈ کر رہا تھا. خوشی مناؤ، بولو. ہاں آگے کیا بولو؟ یہ مسجد یہ ہے. وہ میرے لیے مارا گیا، میرے لیے تو کٹایا، وہ تو کٹایا تھا. وہ ہمارے خوشی دینے کے لیے وہ اتنا غم آیا تھا. اوکے، میں ابھی آپ کو منہ کو دیکھ کر میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، منہ تو کئی پیارا منہ ہے. آپ کی میری باتیں صاف آواز سنا جا رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ اوکے، شکر ہے. ہمارے سننے والا کان دیتا ہے اور آگے سمجھنے والے دل ہونا چاہیے. اس کی پرمداری قدم ہے آگے اپنے اوپر ہے. ہاں جی، یہ پچھلے پیغمبر تھا. میں اس دن بھی
अभी हाँ जी, बड़ी पिछले इतवार की हमारे लिए एक एल्डर है, उसके लिए हम फास्टर बना दिया। मैं भी ईद कर रहा था खुशी खुशी। लेकिन सुनिए, ये सब कुछ अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन इधर भी आकर मालूम है हम खुदा के खादम के ये भी एक ड्यूटी है, वॉचमैन। हाँ, अपने दीघा पर रहकर टेक और पैगाम दो, सलामती 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 बोलकर ड्यूटी सलामती नहीं देना, सबको सलाम सलाम सलाम। खबरदार करो, खबरदार, वार्निंग। अगर तुम ब्रेक देकर खबरदार नहीं किया, अभी मैं तेरा एक्शन में कर रहा हूं, आपके समझ लिए, खुदा मुझे पकड़ेगा भाई। खबरदार करो। इधर हम आते हैं एक खास काम के लिए आते हैं। मैं ये बात आपके लिए हमेशा लोगों को बोलता हूँ, हमारा वर्कशीट में, हमारे प्रस्तुत में खुशी मनाओ गीत गाते हैं, कई आते हैं, और मीटिंग लिखने वाला भी, हाँ मीटिंग लिखने वाले को हाँ वो चल गए। आगे मीटिंग लिखने वाले मालूम है खुशी बस गीत गाते हैं, ये करते हैं, लेकिन अपने आप नहीं है मीटिंग लिखना है। लेकिन बात ये है, हम इधर आकर सुनिए, खबरदार, असेंबली ऑफ गॉड की मेंबरशिप बहुत लोग तलाश कर रहे हैं। मेंबरशिप है, मदद मिल जाता है, ये सब कुछ बहुत कुछ है, मदद मिलेगा। और हमारे लिए कुछ ऐसी वाक्य हो गए भाई, फिर जनाजा भी हो जाएगा भाई, ऐसी बात है अभी कई। और शादी निकाह करने के लिए भी मेंबरशिप चाहिए भी, ये बातें हैं। आगे तबन करने के लिए बहुत मेंबरशिप ढूंढ रहे हैं, मदद के लिए भी है। लेकिन सुनिए, असली असेंबली ऑफ गॉड में होने के लिए हमारा लाजमी है, खबरदार करो। इधर आकर हम एक दूसरे मिलने हैं, लेकिन हम इधर आकर ये है उस शख्स से पास डायरेक्ट आकर मिलते हो, और हमारे क्या पढ़िए प्यारे आयत है, पढ़िए पांच वार्निंग में पढ़ेंगे भी। अच्छा, उसके पहले दूसरी तीमुथियुस की पहली बाब की पहली आयत पढ़े भी, पढ़ने वाला है। ओके, दूसरी तीमुथियुस की 3 बाब की पहली आयत है, आखिरी दिन में ये जान रखो, आखिरी वक्त, ये आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त की और आखिरी, मेरे ख्याल से दूसरा तीमुथियुस 3 बाब पहली आयत। हाँ, पहली लेकिन ये जान रख कि जान आखिर रखो। ज़माने में बुरे दिन आएंगे। ओके सर, बुरे दिन आएंगे भी। आगे 5 आयत में पढ़े, 5 आयत। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, दीनदारी को तो वजब तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। उसकी असर को कबूल नहीं करेगा। ऐसों से भी किनारा करना। ऐसे से भी किनारा करेगा। असर की माल में आप, मैं भी इसके बारे में मालूम करता, असर को मैं इन्फ्लुएंस कर रहा, इन्फ्लुएंस। लेकिन मैं सुनिए, ये भी एक बड़ी बात है, इस असर की ओरिजिनल ज़बान यूनानी ज़बान में आज भी ऐसी बातें हैं। हमारा मदद मिलते हैं बाइबल स्टडी के लिए, खर्च चाहते हैं, उसकी असर के लिए मालूम है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में लिखा है, हाँ, खुदा की कुदरत है। वो कौन सा कुदरत है? डुनामिस है। वही लफ्ज़ हम पहले कुरिन्थियन की पहली बाब की 18 में पढ़ते हैं। स्लीप का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, लेकिन हम ईमान रखने वाले के लिए खुदा का कुदरत है। कौन सा कुदरत है भाई? है क्या? डायनामाइट। अभी धमाका, डायनामाइट, इधर से कोयटा जाते हो, कई पहाड़ों के अंदर से
सुरंग बनाया था, सुरंग रेलवे लाइन डालने के लिए। इंग्रेज बहुत देर के पहले, इंग्रेज तो ये 100 साल के पहले की बना हुआ सुरंग है। उसमें ये छोटा से स्टिक डालकर ये बढ़ के थार डालकर उधर से पानी के मात्माल में ये छोटी से ऐसे केमिकल है, TNT, ट्राई नाइट्रो ट्राइग्लिसरीन कुछ पड़ा था, वो मालूम है बम पहाड़ को उड़ा जाता है। ये पावर है। दीनदारी तो वजह पर रखेंगे, लेकिन खुदा की कुदरत का इनकार करता है। कौन सा कुदरत है? असर इन्फ्लुएंस नहीं है भाई, ये पावर है जिसको हम क्या करने चाहिए, शख्सी तौर पर ये जान रखो। एक मजहब को दीनदारी को वजह तो रखेंगे, लेकिन उसको कुदरत को नहीं तो निर्वाह नहीं कर, असर खबर नहीं कर। स्लीप है, स्लीप के पैगाम खलाक होने वाला के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन नाम ईमान नजात पाने वाला के नज़दीक क्या है? हैं? हाँ, अभी कोई डिमेंशन करके देगा? हाँ, ये नहीं टूटा, लेकिन ईमान रखने वाला के लिए खुदा की कुदरत है। अच्छा ये है, ये ध्यान रखो। अच्छा ये अभी भी एक इस मेरे इंग्लिश के फॉर्म ऑफ रिलीजन है, लेकिन बात क्या है हमारे ये आकर ये अभी आपको पढ़ना चाहता हूँ, ये आयत है, ये 5 वार्निंग निगमान वॉचमैन दीवार में रह कर डेंजर पता रहे। पर ये पहला वार्निंग है मत्ती की इंजील और जाने पहचान है 7 बाब की 22-23 आयत है। मत्ती ये आप लोग पढ़ा ये बहुत मेरे कहले मैं भी पहले भी सुनाया होगा भाई, जल्दी पढ़िए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब उसकी 23वीं आयत। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। लेकिन आप 22 से पढ़े आप 23 पढ़ा, ओके 22। उसी दिन बहुत लोग खड़ा होकर बोलेंगे भाई 22 आयत, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, बहुत बड़ा मनादी क्या, मैं मकरान में आकर बड़ियों को ब्रोहियों को खुशखबरी सुनाने के लिए उधर भागा, मैं ये किया वो किया, लेकिन वो क्या बोले भाई मैं वो किया ये किया वो किया भाई, लेकिन तुम मेरे सलीब की कुदरत को नहीं जानते। मैं तेरे से कभी आगे गया, तेरे से कभी वाकई नहीं। इधर आते माले में कलाम सुनते देखना है उस मसीह को मैं जान लिया, आकर मेरे तुक उठाकर मेरे गुनाह से निकाल कर मुझे अपने बेटा बेटी बन गया है भाई। जय जनाब, असेंबली ऑफ गॉड में उनकी मेंबर नहीं बन जाता भाई। ये दिल में अपने घर में आया, अपने घर में कबूल नहीं किया, लेकिन जितना भी कबूल किया है खुदा का प्रसन्न बनने के लिए हक मिलता, हकदार। अगर ये है मैं उसे जानता, पहला वार्निंग है। अच्छा इसके बाद सेकंड वार्निंग है, ये बाप की 25 बाप की मेरे कहते 11-12 आयत पढ़िए। मत्ती की इंजील 25 बाप की 11-12 खोलिए पढ़िए और इसके नोट करिए, दिल पर कराई में लिखना। मत्ती की इंजील 25 की 11-12 आयत पढ़िए। बोल आगे मत्ती की इंजील 25 बाब 11वीं आयत से, फिर वो बाकी कवारियां भी आईं और कहने लगी, ए खुदावन हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। आगे बदकदार बस जागते रहो क्योंकि तुम ना
उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हम जागने हैं, इधर से नहीं, इधर आकर गीत गाते वक्त नहीं है, हम खुदावंद में बेदार होकर जागते हुए उनकी राह देखकर बैठता है। ये है तीसरी वाणी है, पढ़िए लूका की 13 बाब की 25 आयत है। ये भी इसी तरह तकरीबन यही बात है, मुझे वाकफियत नहीं है। 13 बाब की 25 आयत। लूका 13 बाब 25वां। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो हाँ, और तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि ए खुदावन हमारे लिए खोल दे, और वह जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो। आगे आगे 14 आगे आगे पढ़ते रहे, 25 और 26 तक पढ़िए। 27 पढ़िए, आगे 27। मगर वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो, ए बदकारो तुम सब मुझसे दूर हो। आई बदकदारो हमारा कैरेक्टर है। बदकदारो मुझसे दूर हो जाओ। बदकदार अंदर से ये नया मखलूक बनाकर खुदा के कलाम से नया सिर पैदा हुए। अच्छा, ये फिफ्थ वार्निंग मार्ड में बड़ी फिफ्थ वार्निंग, ये फोर्थ वार्निंग हो गया। फिफ्थ वार्निंग यूहन्ना का इंजील 10 बाब की 14 आयत है। यूहन्ना की इंजील बढ़िया, ये सर्वहाकिम है। सर्वहाकिम यूहन्ना का 10 बाब सर्वहाकिम बाब है। पढ़िए, प्यारा आयत है, रिलेशनशिप है ये। जिस तरह ये मैं खुद पढ़ना चाहता था भाई, आगे हाँ पढ़िए ओके, बड़ी क्लियर है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 14 आयत उसकी। 14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता। ये खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में इंसान बनकर आकर हमारे बीच में रहकर अपनी निमोना रहे। शर्वा बनाकर भेड़ों के लिए ऐसे जागते, ऐसी अच्छी जगह पर लेकर आया। अच्छा चरवाहा मैं पढ़िए आगे क्या है जी। मैं 15वीं आयत। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। आप किधर जम कर दे भाई, पता नहीं। जो ना कि 10 बाब की 14 पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है, यह रिलेशनशिप खुदा इंसान बनकर आकर सर्वा बनकर आते वक्त माल में रिलेशनशिप तक आ रहा है। जिस तरह मैं बाप को जानता हूँ, अभी इंसान आकर खुदा के खोद में रहने वाला था, उनके जाने की कैसे, लेकिन ज़मीन पर आकर जिस तरह मैं खुदा को जानता हूँ, हाँ इसी तरह आगे पढ़ी। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। सिर्फ भेड़ जमा में हो गया। इसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और आगे, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। भेड़ा के लिए अपनी जान देता हूँ। और आगे भी यार बातें पढ़ी जल्दी पढ़ी। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। एक उनको भी मैं आकर लेना है, एक गिरावट भी। अच्छा, ये है हमारा 5 वार्निंग है, खबरदार आपको के भी। अभी हम चलेंगे, आज मैं डायरेक्ट आकर आपके आज हमारे सामने फिलिपियों की 2 बाब में स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत देर के बाद आया 7 महीने के बाद।
इसकी तरह जैसा चर्च वजूद आया था, मैं आपकी तरह उसके टच करेंगे क्योंकि कई कई नया लोग भी है। और खुदा का कादम, अच्छा नहीं वेट मिनट, एक और आखिरी आयत है इसकी वाणी के साथ मालूम है, एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ। दूसरी तिमोथियस की, ये दूसरी तिमोथियस की दूसरी बाब की 19 आयत है। तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम है, खुदा अपने को पहुँचाते हैं। तो भी दूसरी तिमोथियस की 2 बाब की 19 आयत है। तो भी ये कई झूठी बात आकर, झूठा इस आखिरी ज़माने में बहुत खतरनाक वक्त आ गया, लेकिन आगे तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम है। वो आगे क्या लिखा है? खुदा अपने को पहचानता है। खुदा तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम है और उस पर ये मोहर है, खुदा अपने लोगों को पहचानता है। और आगे क्या है? नाराज़गी से भागेगा, लिप्त रहने नहीं, नाराज़गी से, गंदगी, नाराज़गी से भागेगा भाई। जैसा बड़ी मसाला पुराना एतनामा में यूसुफ, ऐसी बड़ी बदी को क्यों कर सकता है? हाँ, बदी से भाग। नौजवान लोगों को ये समझना चाहिए, नौजवान लोग बदी से बात है ये है। तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम है, खुदा अपने को पहचानता है। जितना भी खुदा का नाम लेता है, हाँ जी, वो उस पर ये मोहर है, खुदा अपने को पहचानता है। और जितना भी नाराज़गी से भागेगा भाई, खुदा कुछ करे। ये है जनाब, खुदाबंद भी इसी आखिरी ज़माने में भी खुदाबंद हमारे लिए संभालने के लिए है। अभी मैं इसकी बात आज मैं डायरेक्ट आकर आपकी फिलिपियों के खात की दूसरी बात पढ़कर ऐसी मैं लोगों को देख कर मालूम है, लोगों को आज की रोटी हमको दे। कौन सा रोटी? पेट का रोटी नहीं है, वो की रोटी, आज की रोटी, इस हफ्ता का रोटी। आप ये फिलिपियों की 2 बात डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जरा इसकी चर्च के ना मौजूद आया, आप लोग इसके पर इतने तो जान सकते हैं। और खुदा का खादम तो बहुत जगह आकर चर्च को नया जगह पर आकर बढ़ाना चाहता है। उदाहरण बोलता है ये जगह नहीं है, तो वो गलेतियन की तरह आसिया की तरफ जाना चाहते हैं, उधर नहीं, रोड ब्लॉक है। लेकिन तू तो नया जगह पर जाओ, मगरब रास्ता खुला था, मगरब पे आकर रोश में आते वक्त पढ़िए 16 बाब, अमाल के 16 बाब की 9 आयत। ये उधर से आते वक्त उधर खुदा जब वो रुख खुदा की तरह मगरब की तरह आगे है, खुदा रात की वक्त खुदा के खादम के साथ बातें करता है। तुमको ये मना नहीं कर रहा हूँ, तो जाओ भाई, तुम नया जगह पर जाओ। पर 16 बाब की 9 आयत, अमाल की किताब 16वें बाब की 9वीं आयत। और पौलुस ने रात को रोया में देखा रात कि के एक वक्त, इन्हें मतलब खुदा का खादम सोने भी चाहिए था। रात के वक्त सोते वक्त रोया में दिखाया कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर, हमारी मदद करो। SOS कॉल, सेव अवर सोल, मकदूनिया का आओ और आओ। वो कहता है इस वक्त पौलुस से सिलास निकला था, खुदा रास्ता में लूका को भी दे दिया है। हम आगे 10 आदमी क्या है, एकदम फौरन आगे 10 आदमी। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। हाँ, हमको बुलाया भाई, सब इकट्ठा कर हमको बुलाया। फिलिपियों से आ रहा है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम के बाप
फिलिप के नाम में पीछे, फिलिप और मकदोनिया, वो उसके नाम में पीछे ये शहर बनाया था। ये दोनों बड़े आज़म, आसिया और यूरोप को भी ये सड़क उधर से निकलता है। ओके, और ये उसके नज़दीक एक सोने की सुरंग भी था। उधर आकर बहुत लोग उधर आते हैं सोने से। हाँ जी, और बड़ी ये जर्मन शहर था, सॉरी यूनानी शहर था, उसको रोमन हुकूमत आते वक्त अपना रोमन कॉलोनी बनाया था। ये रोमन कॉलोनी था। उधर से पहुँचते ये तीनों आदमी ढूंढ रहे हैं भाई, ये बंदा तो रोया मिला था, किधर है ढूंढते हुए नहीं मिल रहा है। एक हफ्ता हो गया भाई, सबत के दिन आकर कई एक शहर की बार यहाँ पर कुछ लोग दरिया के सामने बैठे वक्त उधर आप जो पिछले सुन लिया था, उधर से बैठकर लोग दुआ के लिए जमा था। सब औरत लोग हैं, इधर आदमी लोग भी बैठे, उधर भी आकर दुआ में शरीक होने के बाद, आई साहिबा आपके पास कोई पैगाम है दे दो। बोल दिया तो औरत है, उधर खड़ा होकर मालूम है हम तो सुना था, ये पहले भी सुना देता है, तो दोबारा आपके रिपीट कर रहा। खुदा ने लिदिया के दिल को खोल दिया। वो भी मिन्नत किया थे, पर कलाम के बाद अगर आप मुझे ईमानदार समझती हो, मेरी गार तो तेरा खुला है भाई, आप तो उधर किधर गैर लाख पर सराय में रह रही हो, हमारी गार में आकर तीनों आदमी आकर उधर रहते हैं और ढूंढ रहा है। एक शब्द होया, दूसरे शब्द होया, वो बंदा आदमी कहीं नहीं मिल रही, औरत है। फिर एक बुरी रूह की एक लड़की था, उसे बदल निकालने के बाद उनको मालूम में पकड़कर मारकर जेल में डाल दिया है। ये मिडनाइट प्रे मीटिंग है, आधी रात की में ये बंदा दोनों, ओ भाई हमारा वो बंदा नहीं मिला है भाई, अभी तक नहीं मिला है भाई। ये सिर्फ और ये लड़की के बुरी रूह को हटाने से हमारे ये मार डाल कर ये तिहारती लोग सब आकर मिलकर और मजिस्ट्रेट के पास लेकर गया, हाकिम के पास लेकर, ये लोग ये गैर लोग हैं हमारे शहर के खराब कर रहे हैं, पकड़ खूब मार कर अंदर डाल दिया था। लेकिन वो इधर भी बैठे अपने ये अपने पाँव को भी रात है, उधर से रात की वक्त 25 हाथ पड़ी, 16 बाब की 25 हाथ। 16 बाब की 25 आयत। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे। अच्छा सुनिए, दुआ कर रहा था आधी रात। दुआ करते वक्त क्या हो रहा है भाई, पौलुस के लिए मालूम है रात की वक्त रोया मिला, फिर दोबारा वो भाई वो रोया कि वो जेलर की डर गया। जेलर की क्या उर्दू में क्या बोलते हैं, डर गो। अच्छा, जेलर को नजर रखते वक्त ये है भाई बंदा, खुदा हमको लेख रहा था जेल में, ये बंदा जेल के अंदर रहता है। एक तो मालूम है गीत में शुक्रगुजारी करने लगे थे, दुआ कर रहा था पहला, फिर गीत गाने लग गया था। और समझ लिए किसी को कह रहा है ये जेलर के बीवी और बच्चे, उनके बच्चे, ये बंदा शराबी बंदा और उसके अंदर से खुदकशी की रूह काम करता है। वो भी मालूम में रात की वक्त मालूम में कुछ दुआ में लगा हुआ था, ऐसे मालूम है। वो भी जेलर की घर के अंदर भी दुआ रहा है भाई, इसी बंदा का खुदकशी करने वाला आदमी है, इसी शराब करने वाला है, दुआ रहा था। जब दोनों मिल गया भाई, खुदा ये बंदा पौलुस दिख रहा था, ये बंदा भी खुदा देख रहा था। क्या हो रहा है भाई, जलजिला
ضلع شہر کی نہیں ہے، اسی جیل کا فاؤنڈیشن. ہاں جی ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ زمین کی زلزلہ نہیں ہے، آسمان کے لیے خداوند بیداری لکھ رہا تھا اور گیت گانے لگا تھا. سب قائدی سن رہا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے. یہ ہے مڈ نائٹ میں بڑی بیداری ہو رہا ہے اور چرچ کے آگے کمپلیٹ ہو رہا ہے، فاؤنڈیشن لگا کے. ہاں جی جو شکر ہے. اس رات وہ بندہ مل میں خود کا اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا. رکھو بھائی، یہ دروازے بھی کھول گئے بھائی، جیل کا بھی سب کھول گئے بھائی، یہ پاؤں کے اندر تھا وہ بھی کھول گیا. یہ خدا بڑی موہ سے کیا. یہ موسیقی کے طور پر ایک انسان نئے سے پیدا ہونا بڑی میریکل ہے. یہ میریکل ایک انسان یہ جسم میں پیدا ہونا بھی ایک بڑی میریکل ہے بھائی. لیکن اس سے زیادہ روحانی بچے، ہاں جی، اور زیادہ اس سے بھی گریٹ میریکل ہے اسپرچل لیول پر. یہ چرچ کہ ایسے لوگ رات کی وقت ہے اگر اب وہ خود بخود سوال کے بھائی کیا پوچھا بھائی 30-31 پڑھیے. 30 آیت. اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، اب میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. ہاں یہ خود آدمی سوال کرو بھائی میں کیا کروں تاکہ نجات پائے. انہوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو ایمان رکھ، تو اور تیرے گھرانے نجات پائے گا. مڈ نائٹ، ہاں جی، آدھی رات میں بڑا بیداری ہوا. اس رات کیا بھائی مڈ نائٹ میں آخر مال میں پھر کلام سنا رہا تھا. مڈ نائٹ ایک منادی ہو رہا ہے. پھر مڈ نائٹ منادی ہونے کے بعد مڈ نائٹ میں کیا ہو رہا ہے بھائی 32واں سروس ہو رہا ہے بھائی. اسی رات صبح نہیں بھائی، صبح اب یہ سو جائے بھائی، سو جا نہیں. آج کے دن ہم آگے کیا 32واں اس رات ہے، اس رات میں 32واں ہو گیا بھائی. پھر اس کے بعد تھینکس گیونگ سروس وغیرہ، شکر گزاری ہے. اچھا اسی وقت مال میں خدا بھی کام کرنا لگیا تھا. وہ میجسٹریٹ لوگ مال میں صبح ماں کو بولتے بھائی یہ بندہ کو کھول گئی. پھلوس بھی بولتے تھے ہم رومن شہر کے. ایک کرنے کے بعد ایسی بات ہونے کے بعد وہ بولتے تم لوگ جلے بھائی. پھر خداوند ان کو عقل شہر کے لیے پھر ان کے میں سمجھتا ہوں واپس آنے کے لیے تمہارا بھی اجازت ہے، نکالے نہیں ہے. تم تو ہم تو رومن شہریوں کو تم مار دیو، بہار ٹرائل کے بغیر مار دیو. ایسے پولیس اپنے حق کو پکڑ کر کھڑا تھا اور ان کے لیے نکال دیا تھا. اچھا سنگی یہ ہے ابھی یہ چرچ فلپین کی چرچ ایسے قائم ہو گیا ہے. اچھا ابھی ہم سنیے 11 سال ابھی تقریباً 50 سال ایڈی 50 سال ہے. ابھی 11 سال آگے کریے 61 ایڈی خدا سال میں ایڈی 61 میں ہم آئیں گے. اچھا سنیے ایک بات ہم اس کو بھی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. اس کے اصحاب ہمیں 61 سال میں پولس جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ قید ہو کر بیٹھا ہوا تھا. لیکن سنیے آپ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پولس تو آگے اسپینیا سے بھی آگے آ کر منادی کے لیے تیار ہے بھائی. یہ جتنا چرچ بنتا ہے یہ بھی خدا کی بڑی موزے ہے پلانٹنگ. لیکن خدا اپنے اس کے قادر مطلقی اور ان کی پرویڈنس میں خدا ایک بہتر بات پہ سوچتا ہے. ہاں جی پولس تمہارے لیے بڑی توفیق ہو یا تمہارے لیے بڑی بیت کھل گیا ہے.
لیکن یہ تم یہ بیتوں کو لے کر قبر پر نہیں جانا. اس بیت تمہارے لیے ایسی تکلیف کے اندر سے یہ تمہارے سین کوڑا تھا. تم اس کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ یہ اپنے میراث کے طور پر کلیسیا کے دو. کلیسیا کے دو. تم کو میں چاہتا ہوں تم تھوڑا ٹرسٹ کرو, تھوڑا بیٹھو. ہاں, وہ پھلوس بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں خداوند یسوع مسیح کی قیدی ہوں. خداوند, آپ لوگ بڑے پیارے گیت کر رہے ہیں, میرے بھی بڑے پیارے گیت ہے. آج صبح پہلا گیت کون سا گیت کا ہے بھائی؟ اب پہلے گیت کے بکر نہیں آئے. اوکے, کیا بھائی؟ سب دیتا ہوں میں, سب دیتا ہوں تو مبارک خدا, میں سب دیتا ہوں. پھلوس ایک بندہ ہے, زبان نہیں ہے, اپنے آپ کو خدا کو دیا بندہ ہے. آپ مجھے سونے چاندی سے نہیں ہے, اپنے بیش قیمتی پدا خون سے مجھے خرید کر اپنے بڑھایا. تم اپنے نہیں ہے بھائی, میں تیرا ہوں, خدا تیرا ہوں. دیا تھا بھائی. میں اس وقت معلوم ہے میں آپ کا قیدی ہوں. آپ مجھے لے, جو کچھ مرضی کرنا ہے مرضی کرو. ایک ہی زندگی ہے, جلد ختم ہو گیا, اور جو کچھ ہم مسیح کا کیا تھا وہ اب تک رہ گئے. Only one life and that will soon pass. Only what is done for Christ will last. Only one life. کتنا لائف ہے بھائی؟ ایک ہی زندگی ہے. اسی زندگی کے اندر ہم کیا کرنا بھائی؟ خالق اپنے پڑھو. یہ جلدی ختم ہوئے گا بھائی. لیکن جو خدا کے لیے ایک ٹھنڈا پانی پلا دیا ہو, ان کے لیے اجر ہرگز نہیں ہوئے گا. آج میرے آپ کا بھی یہ 1926 ہو گیا. ہاں جی, اور 27 28 29 30 31 32 23 17 رہ گئے. یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے. خدا کے لیے جو کچھ کیا تھا بول رہے گا بھائی. اچھا, یہ پلوس خدا بولتا ہے پلوس تو چل جائے گا بھائی. لیکن یہ بیت کو پڑھیے, افسین کی 3 باب کی 8. بے حیاس دولت, بے حیاس دولت کو خدا پلوس کو دیا تھا بھائی. پڑھیے بھائی, افسین کی 3 باب کی 8 9 آیت. افسیوں 3 8ویں آیت. مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں, یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں, اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا, اس کا کیا انتظام ہے. 9 بھی پڑھیے. 9ویں بھی ہوگی. اوکے, یہ بیت غیر قوم کے اندر بے ہے, یہ دیا تھا. یہ خدا ان کے لیے بڑی بڑی بیت کھولا تھا. لیکن خدا چاہتے تھے تو یہ اپنے یہ بیدوں کو, جس کو تمہارے کھول گیا تھا, بے حیاس پڑھا پلیز تمہارے پڑھیے 8. اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا, اس کا کیا انتظام ہے, تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے. جی ہاں, یہ بات ہے بیت کو لے کر ہمارے کلام لکھ کر, ہم خدا کے کلام میں لکھ کر ہمارا کہتا ہے یہ ہمارے ہے. اس کو پڑھ کر ہمارا روح قدس کی وجہ سے اس کو پھر ہمارا خدا بھی اس کو کھولے گا بھائی. لیکن بنیادی بات یہ ہے 14 میرے صاحب کتاب کے مطابق 14 خطیں پلوس لکھا ہے, اور باقی جتنا شاگرد ہیں سب کمبائنڈ صرف 7 ہے. پترس ہے, یوحنا, یہ سب کچھ کمبائنڈ صرف
साथ है, लेकिन पलूस को खुदा इतना तौफीक बख्श रहा था, ये बेद को लिख कर हमारा ये 14 हाथ में लिख कर हमारे लिए हाथ में दिया है। अच्छा नहीं, और इसको हमको आज भी पढ़कर इसके वेद को जानकर हम खुदा की और बेहतर जान सकते हैं। ओके, खुदा ये पल्स की बात हुए थे, ये इसकी नतीजा में क्या हो गया भाई? ये खत है, कौन सा खत है? ये इफिसियन, फिलिपियन और कोलोसियन और फिलोमेना और दूसरी तिमोथियस भी जिसको हम पढ़ा था, वो भी पलूस हमको लिख कर, ये शायद उस वक़्त खुदा लिख कर हमारे मेरास के तौर पर खुदा दे दिए है। सुनिए, ये है। लेकिन जब ये सुना था भाई हमारे खुदा की चर्च फाउंडर फिलिपियन की चर्च है, वो किधर है? इस वक्त जेल में है, रोमन जेल में है। उनके लिए मालूम है ये हमारे पाकिस्तान की जेल की तरह नहीं है। पाकिस्तान की जेल में जितना भी कैदी आता है वो सरकारी मेहमान बन जाता है, लेकिन उनके लिए जितना भी है उनको ये सिर्फ ये है गार्ड, उनको पकड़ कर रखने के लिए गार्ड दिया जाता है। बाकी उनके लिए कपड़ा अपने तरह से, रोटी, सब कुछ अपने अपने खुद बंदोबस्त करना पड़ता है। ये जब हो फिलिपियन का कलीसिया ये पलूस को मुख्तलिफ वक़्त में मदद देता रहा, पैसा की मदद देता रहा। अभी वो जब वो सुना था हमारे चर्च के पास आकर हमारे लिए मदद किया था, खुशखबरी सुनाकर हमको खुदा की ऐसी ऐसी बरकत नियमत है हमको पहुंचाया था। भाई वो जेल में है, एक बंदा को छोड़ा भेजा था, तुम में से एक बंदा को जाओ भाई। एफ्रेडिटस एक बंदा था, वो बंदा रोम पहुंचने के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। वो किधर है भाई? 800 मील तकरीबन 7,000 किलोमीटर है। वो निकल रहे गए भाई, हमारे खादम को पास पहुंचना चाहिए, उनकी बड़ी ज़रूरत है भाई। पैसा भी हो, गिफ्ट है, खाने पीने के सब मार्केट निकाल के माल में। ये बंदा किधर है भाई? अपने मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं है भाई, गाड़ी नहीं है भाई, वो आकर पैदल चलकर, और पता नहीं तकरीबन 7 हफ्ता चलते भी हो। अगर कोई है ऐसी कदा की कोई गाड़ी चलते भी है, और कई सड़क में, और कैसा वो इफ्रेडिटस एक बंदा। पढ़िए मेरे के लिए 2 बाब की 25 आयत पढ़िए, 2 बाब की 25 से आखिर तक पढ़िए। फिलिपियन के 2 बाब की 25 से 30 आयत। फिलिपियन 2 बाब की 25 से 30 आयत। लेकिन मैंने इफ्रदीतस को तुम्हारे पास भेजना ज़रूर समझा, और वह मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपाह और तुम्हारा कासिद और मेरी हाजत रफ़ा करने के लिए खादिम है, क्योंकि वो तुम सब का बहुत मुश्ताक था और इस वास्ते बेकरार रहता था कि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया, और फ़कत उस ही पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। 30 तक 28वीं आयत। इसलिए मुझे उसके भेजने का और भी ज़्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। बस तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज़्ज़त किया करो, इसलिए कि वो मसीह के काम की खातर मरने के करीब हो गया था। मरने के करीब भी है, इतना लंबा सफ़र
कैसा खाने पीने भी सफ़र मरने के करीब होया आगे। और उसने जान लगा दी ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे। अच्छा सुनिए, ये बंदा है एफ्रेडिटस, फिलिपियन है एफ्रास, एफ्रास है वो कहते हैं, दोनों इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक खादम है, वो खुदा की प्यार उसमें था, खादम के पीछे इतना 800 मील सफ़र कर कर तकरीबन 7 हफ्ता में पहुँच कर रोमन शहर में आकर पहुँच कर उनको भी दे दिया था। फिर उनके बाद उनके पास रहकर रोटी भी, उनके भी खाने पीने पकाना भी, और ऐसी ऐसी मदद करता रहा। और मदद करते अभी फिलिपियों को मालूम है था हमारा एफ्रेडिटस आते आते बीमार हो या मरने के करीब हो या। फिर पौलुस बोलता है मैं अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ, इसको मैं वापस भेजूँगा। अच्छा जी, वो एफ्रेडिटस, मैं आपकी तरह 1 मिनट सोचने के लिए टाइम दूँगा। एफ्रेडिटस ये चीज़ें लेकर आया था, खाने पीने की, पैसा और कुछ ये माली मैदा, लेकिन एक और भी चीज़ लेकर आया था। वो कौन सी बात है? तुर्बत की चर्च है। आप तो अगर कुछ लोग मेरी भी मदद करते हैं भाई। और क्या है? दुआ में शरीक है। 5 आयत बोल रहे भाई मेरे कहने, ये फिलिपियों की पहली बाप की 5-6 आयत पढ़िए। फिलिपियों की पहली बाप की 5-6 आयत। तुम खुशखबरी में पहले से अभी तक तुम मदद करते रहे। आप लोग तुर्बत के कलीसिया को कुछ फिक्र है? अभी सुबह आते वक्त एक बच्ची बोल रहा था मैं तुर्बत की दुआ करता हूँ भाई। ओके, आप पढ़िए बुलंद आवाज। अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। आप खुशखबरी से और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक नाम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। पूरा करेंगे, खुदा यीशु मसीह पूरा करेंगे। तुम अभी तक मेरी खुशखबरी फैलाने में शरीक किया भाई। आज भी मुबारक है वो लोग तुर्बत के लिए। पैसा किसे छोड़ भाई, पैसा मेरे कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर ज़्यादा देते थे गरीबों को बांटते। हाँ, आपको पैसा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग दुआ करिए। दुआ जी, टाइम लेकर दुआ करके बड़चियों बरोचियों हुए खुदा दे। सिर्फ पंजाबी लोग नहीं भी। ओके, अभी तक तो मदद किया है, शरीक हो या शरीक खुशखबरी फैलाने में। अच्छा, एक और भी बात है, जब वो एफ्रेडिटस, हाँ एफ्रेडिटस की भी मतलब लफ्ज़ के मतलब है बड़े प्यारा भाई। हाँ प्यारा भाई है। हाँ जी, वो आया था, एक और भी चीज़ लेकर आया था। क्या हो सकता है? दुआ में सही हो रहा है। और पौलुस को भी बहुत ज़रूरी था। कलीसिया की कंडीशन उनकी है, उनसे मालूम होया उधर से भी तो किस्म की ये कल्चरल डिफरेंट दो किस्म के लोग हैं। एक ये है लिदिया, वो एक औरत है, बिजनेस वूमन है, और वो बिजनेस क्रिमसी बेचने वाला थिएट्रिका का एशिया माइनर की तुर्की के, आजकल तुर्की के इलाका का रहने वाला था, वो आसिया है। लेकिन वो कुछ लोग हैं उधर की, हम रोमन शहरी लोग हैं, हमारा बड़े प्रिविलेज है, हकदार है, हफ्ता लोग है, हफ्ता है, प्रिविलेज है, लोग हैं, हम प्रिविलेज लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं कर कर अपने आप को भी कुछ समझते हैं। हाँ, लेकिन सुनिए, ये इनकी ऐसी दोनों के बीच में आ रहा है। एक हम
4 बाब में, फिलिपियों के 4 बाब पढ़ते वक्त तो 2 औरत है, वो अपने उधर के रहने वाले लोग था, रोमन शहरी लोग था, वो आपस में कुछ रगड़ा करते हैं। लेकिन नजात हफ्ता लोग तो ना औरत है, उनकी भी ऐसी है। ये कर ये पलूस आगे दूसरी बात में तुम लोग को मिलकर रहना है। ये 2 बाप की पहली 4 आयत पढ़ेंगे, उसके साथ हम कम से कम 11 आयत तक उसको कंप्लीट करने पे पढ़िए। 2 बाप की पहली 4 आयत आप भी अपने बाइबल में पढ़िए। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे। या खानदान के अंदर फुट हो गया भाई, कहीं न रहेगा। फुट समझ रही है अभी? फुट समझ रही है? फुट लफ्ज़ जानते हैं? फुट हो गया, ब्रेक, क्रैक हो गया। अगर खानदान के अंदर ये जग तिल रहना है, एक तिल रहना है, फिर हम मिलकर रह सकते हैं। अगर बीच में ऐसी मेरा तेरा ऐसी होते बात जॉय, अगर इंग्लिश पढ़ने वाला के बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जॉय के स्पेलिंग क्या भाई नवीद? जॉय के स्पेलिंग, बट स्पेलिंग क्या? JOY, जॉय का मतलब है, कोई बोल रहा है पहले जीसस, और दूसरी कलम में कौन है भाई? अदर्स, बाई आकर में योरसेल्फ। हम खुशी होने के लिए मेरे खुशी पूरी करो, खुदा के कादम खुशी होता है। ये चर्च झगड़ा लड़े कर मालूम है, मैं पौलुस को हूँ, मैं अपोलोस को हूँ, ऐसी कर झगड़ा कर मालूम है। एक नुक्ताचीनी करता है, मिलकर बैठकर दुआ नहीं कर सकते हैं। खुदा बोलते हैं जब मिलकर रहकर दुआ करे खुदा बरकत होता है। बिदत आखिर फिर आगे माल में कलीसिया टुकड़ा हो जाता है। जागतिल रहना है, एक ही ख्याल रखना भाई, फिर काम में कुछ नहीं करना भाई। जाग क्या है खुदा, ये मेरे खुशी है भाई, मेरे खुशी है, जॉय। जब ये सुनिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं पहले बता दिया था भाई, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम शामिल पता थे, शामिल अभी पहले बोलते सब बुराई की जड़ें पहले बताया था। मैं सबको मैं कुछ भाई, मेरे कदर न रखते मैं कुछ, ये भाई सबसे प्रॉब्लम है। मैं लेकिन सुनिए खुदा, ये भी एक बात है। अब ये आगे हम चलेंगे भी, मैं करने वाला मालूम है सबसे क्या है, सब बुराई की है। अगर मैं खत्म हो गया भाई, खुदावन सुनिए, खुदावन यीशु मसीह पहले से बता दिया, अगर जो कोई मेरे पीछे आने चाहते भाई क्या करना भाई? ये सब हम जानते हैं। अपने खुद के इनकार करो, खुद के इनकार करके क्या है अपने पर क्या करना चाहिए? स्लीप उठाओ। स्लीप क्या है? स्लीप भी इसके अंदर से भी ये मतलब है स्लीप, मैं मर चुका हूँ, बड़े प्यारा लफ्ज़ है। हम कई लोग भी इधर ही बोला भाई अब मैंने रहा। हाँ पढ़े भाई, कौन सा आयत है भाई, कौन सा आयत है भाई? गलातियन 2:20, मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ,
बपतिस्मा का मतलब ये है जनाब, मैं मसीह के साथ मसीह के साथ मजलूब हो गया। और बपतिस्मा क्या करता है? मैं मसीह की तरह दफन कर दिया। मैं दफन कर दिया। अब मसीह में एक वो पहले मैं क्या है, आदम से मिला था, सिर्फ मर चुका है, मसीह के साथ मतलब आप मसीह यीशु में एक नया मैं आया थे, पुराने मैं खत्म हो गया, अभी नई मैं क्या करता हूं? दुनिया में रहकर मसीह के जवाब प्रार्थना के साथ, मसीह के साथ मैं प्रार्थना के साथ, मैं कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई। आप इस बेद को जानते हो, मालूम है मसीह जिंदगी बड़ी आसान है भाई, और मसीह के जी है, मसीह के साथ जी है भाई। ये एक बंदा खुदा का खादिम है, चीन में वॉचमैन नहीं है, ऐसे एक बंदा है, ये इसके ऊपर बड़ी किताब लिखे, वो नहीं भाई, उधर आकर तुक उठाए, कई नुकसान उठाए। ये भाई खुदा के लोगों, ये मसीह के साथ मतलब होगा, मैं नहीं समझ रहा। वो पुराने आदम में मिला था, खत्म। अभी मसीह में मैं नया मखलूक आया भाई, मैं ये खुदा अपने रूह को डाल दिया भाई। मैं खुदावंत की फसल से जो अभी पढ़ा जो कुछ मैं हूँ खुदा की फसल से, फसल है। ये बड़ी प्यारा बात है। अगर आप खुशखबरी की पूरी समझ लिए भाई, मुबारक है। अगर नहीं है झगड़ा लड़ाई और आकर माल में ये नया असेंबली गॉड भी हो, कोई भी हो, झगड़ा लड़ाई होते भाई। ये है 4 आदमी दिख रहे हैं, 4 आदमी और खुदा के कादिम, ये मेरे खुशी पूरी करो। जगतिल रहा, जगतिल एक तिलोक रहना, बस खुदा के लोग जगतिल रहे। पर 5 आदमी क्या लिखे हैं? जैसा मैं साथ रखो, जैसा मसीह का भी था। पढ़िए जल्दी पढ़िए भाई, 6 से 11 तक पढ़ो भाई। पढ़िए एक इधर एक थोड़ा सबक देखेंगे, इसके बाद दुआ करेंगे भाई। पढ़िए कौन सा बाप? फिलिपियों की 2 बाब के 6 5 से पढ़िए। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। जैसा मसीह यीशु का भी था वो एक दुनिया में रह कर एक है। कलाम को खोल तो पढ़िए, यीशु का भी था। मसाज रखो, मसाज का मतलब क्या भाई? इधर से हमारा माइंड है, किधर हम सब कुछ फैसला करते हैं, माइंड। आगे बढ़े। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदा की सूरत में था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। कब्जा पर कर, मैं कुर्सी मिल गया भाई, कुर्सी मिल गया भाई, हाँ कुर्सी मिल, हाँ मिल गई, हाँ बल्कि ऐसे पकड़ कर कब्जा में रखा है। हाँ फिर आगे, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खाली कर इसे कुर्सी निकाल कर मालूम है। अच्छा ये और खादम की सूरत अख्तियार की, खादम की, और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ये फिलिपियन के अंदर ये एक बड़ा डॉक्ट्रिन है। इस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं क्रिस्टोलॉजी। मसीह के बारे में ये वेद को समझ लिए, वो क्या था, क्या बन किया भाई। खुदा दुनिया से ऐसा प्यार किया, अपने कुलता बेटा बख्श दिया है। वो अपने आप को बख्शने के लिए इंसान बनकर आकर, सुनिए इसके अंदर से कलाम के अंदर लिपटा हुआ है, वेद है, इसके समझ लिए लिपटे हुए। हमारा दिल पाक हो, फिर
खुदा को देखेंगे। हमारे दिल, अगर दिल पाक नहीं है, दिल तौबा के लिए जो ज़रूरी है, तौबा। अगरचे वो खुदा की सूरत में था, अपने कब्जा करने कर बैठने की नहीं है, अपने आप को खाली कर कर मारना है। अच्छा सुनिए, इसका मतलब है खुदा में कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होया। खुदा खुदा है, 100% खुदा है, लेकिन ये ऐसा कि नो बाप के अंदर क्या लगे, वो लोग अंधेरे में रहने वाले लोग बड़ी रोशनी दिया था। मौत की बात में रहने वाले लोग के लिए बड़ी एक उम्मीद पैदा होया। वो आगे के लिए है, हमारे लिए एक बेटा है, दौलत होया, दौलत है, हमारे लिए एक बेटा क्या, दौलत है, लफ्ज़ है दौलत होया, दौलत। खुदा ये एक एडिशन है भाई। आज सबूर 2 में लिखा है, आज तू मुझसे पैदा होया, आज तू मुझसे, मेरे गले दो बाप की, सबूर की 2 बाप की 7 आयत में, सबूर पढ़े पे, सबूर की 2 को 7 मेरे गले, आज मुझसे पैदा होया, सबूर 2। ये भी मैसियानिक सबूर है। दूसरा ज़बूर 7वीं आयत, और मैं उस फरमान को बयान करूँगा, खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। आज मुझसे पैदा होया। आज खुदा दुनिया में इंसान बनने के लिए एक एडिशन हो रहा है, दुनिया में पैदा होने के लिए आया, इंसान बनकर हमारी शक्ल में आने के लिए, इंसान के लिए पड़ा, इंसान के लिए मर में कुंवारी मरियम से इंसान के असर नहीं है, कुंवारी मरियम से रूह कुदस की कुदरत से। ये कैसा हो सकता है? खुदा से सब कुछ हो सकता है, इंसान से नहीं हो सकता। खुदा आज एक एडिशन है, पैदा होया, आकर सुनिए, खुदावन आकर दुनिया में रह कर सुनिए। मैं ये बात है फ़ख्र करता, मैं हमारे तुरबत में एक नक्शा रखा था, उधर से खुदा इधर पैदा होया, इधर इधर रह कर नक्शा कदम खड़ा, चलते 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 ये लोगों को दिमाग में दम है विजुअलाइज करने के लिए, खास कर हाँ जी, आप खुदावन मेरे लिए एक कैसे पैदा होया, रहकर दुनिया में रहकर, इस ज़मीन पर रहकर, एक कदम रख कर, नक्शा कदम रख कर, एक नक्शा कदम रख कर, हमारे लिए एक नमूना देकर खुदा आकर मर में, फिर आखिर में पैदा होकर सिले पर चढ़ गए है, हमारा गुनाहों को लेकर, गुनाह की मजदूरी लेने के लिए। ये सब कुछ खुदा हमारा नहीं क्या है। मेरे कहले अगले इतवार आप लोग रोटी तोड़ेगा, रोटी मुँह में ऐसी सोच समझ मुँह डाल, खुदा आप ये मेरी मौत को याद करो। मौत क्या चीज़ है भाई, वो तिकुट आया, रोक जैसे मेरी बाग के अंदर दुआ में पसीना में खून आ रहा है, आंखों से भी खून निकला था, फिर और बड़ी उनके जान में कब्र आ रहा है, मेरी जान कब्र आ रहा है। फिर आखिर क्या तो भाई मर गया, खुदा जैसे मरा है, उनके रूह काट गया था। डैनियल बोल रहे हैं उसकी कौन समझाएगा, उनका रूह कट गया है अभी, लेकिन अपने लिए नहीं है, मेरे लिए उनका रूह कट गया। खुदावन तुकुट आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए तुकुट आया है, मैं मेरे मसीह है। चलिए ये है खुदावन हमारे लिए,
आकर खुदावंद ये मालूम है, खुदावंद हमारे लिए आकर इधर से आकर क्या इंसान की मुशाबा में आकर हमारी शक्ल में बनाकर फिर मालूम है आकर में क्या बन गया था। बड़े प्यारा आयत भाई, ये इसके आयत का हम कंप्लीट करेंगे भाई। पढ़िए दूसरी कुरिन्थियन की, आप में से कोई पढ़िए, प्यारा आयत है भाई। दूसरी कुरिन्थियन 5 बाब की 18 आयत से पढ़िए। खुदा ने मसीह में होकर हमारे खुदा के साथ मेल मिलाप कर रहे। दूसरी कुरिन्थियन 5 बाब की मेरे गए 17 से पढ़िए, 17 से, बड़ी प्यारा है 17 से कोई पढ़िए भाई। भाई मेल मिलाप खुदा ने मसीह में होकर, कौन है भाई? कौन? खुदा ने मसीह में होकर खुदा के साथ मेल मिलाप कर रहे थे। मेल मिलाप, ओके, मरते वाला डक को भी खुदा मेल मिलाप कर दिया। आगे ये मेल मिलाप की खिदमत खुदा खादमों को सपुर्द करता है भाई, मिन्नत करता है भाई, मिन्नत करता है। आगे मत मेल कर लिया है, ये खुदा के साथ बोले खुदा अपने तरीके से पूरे दुनिया के मेल मिलाप कर लिया है। आगे हमारा सौंप लिया खुदा की, फिर और आगे हमको सौंप लिया है, इसलिए हम इधर आकर मनादी कर रहे हैं। आगे बढ़े, मसीह के खुदा से मेल मिलाप कर लो। हाँ आगे, जो गुनाह से वाकफ नहीं था उसी को उसने अच्छा नहीं, एक मिनट ठहर भाई। कौन किसकी भाई? कौन किसकी है? खुदा ने अपने बेटा की हमारे वास्ते क्या बनाया? क्या बनाया? गंदगी, हमारे वास्ते गंदगी बनाया था ताकि हम उसमें होकर, ताकि खुदा की रसबासी हो जाए। खुदा का विषय मसीह में होकर हम खुदा के रसबास हो जाए। आप बहुत कुछ सुनाए अभी, आप इसको दिल में रख लिए और आगे भी लोग शेयर करिए। कई लोग इस खुशखबरी को नहीं जानते। आज भी एक मसहब को पकड़ा, मसहब मसीह को मुझे मिला, अस्मा को देखो वो कैसा मेहरबान है। ये है हम इधर लेकर, ये बरकत का अच्छी चीज़ें लेकर अपने नहीं है, अपने और अपने घर को भी और पड़ोसियों को भी इसको खुशखबरी फैलाना हमारा काम है। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा मेरे तौफीक बख्शे, आपको भी है। ये कलाम बाहर रहकर अदालत नहीं करे, बल्कि ये हमारे दिल में रहकर हम खुदा के लोग बने। प्यार खुदा बाप, आपकी रहम फजल मुझ पर होया खुदावन, कमज़ोर की बावजूद खुदावन मेरे ज़बान नहीं है खुदावन, मेरे भी इतना ज़बान नहीं है खुदा इस बड़ी खुशखबरी के खुदावन, इस बड़ी बरकतों को खुदा बयान करने के लिए। लेकिन खुदा ना अभी कमज़ोरों को इस्तेमाल करते खुदा, ताकि सारे जलाल आपके खुदा। शुक्र है इस वक्त जितना लोग खुदा छोटे से बड़े तक खुदा ये कलाम इसमें रहकर आपकी बरकत में बढ़ने की तौफीक बख्श। कोई भी मेरी बातें से टक्कर नहीं खाए, रहम कर हमारे ऊपर, अपने रहम की शुक्रिया है। हर एक बड़ी बरकत यीशु के नाम में, आमीन आमीन।
آخر میں ایک گیت گائیں خداوند کی حضوری میں اور پھر عبادت کا اختتام ہوگا۔ آئے خدا پاک روح مجھ پر جنبش تو کر۔ خدا کی روح ہی ہے جو ایمانداروں کو زندہ کرتی ہے، خوشی سے بھرتی ہے، تقویت دیتی ہے، مدد فراہم کرتی ہے۔ تو ہم صرف گائیں گے نہیں، ہمارا ایمان اس میں شامل لائیں ذرا میں دیکھوں نمبر کون سا ہے۔ آئے خدا پاک روح مجھ پر جنبش تو کر، سب کھڑے ہو کے ہم گاتے ہیں۔ 35 نمبر ہے۔ ہاللویا۔ خدا پاک آج جنبش تو کر، جھولے ہر زندگی خالی دامن کی بھر۔ اے خدا پاک آج جنبش تو کر، جھولے ہر زندگی خالی دامن بھر۔ اے خدا پاک اندھی آنکھیں کھلے، مردہ دل بھی جلا، اندھی آنکھیں کھلے، مردہ دل بھی جلا۔ تو ہے قادر خدا، اپنی قدرت دکھا۔ تو ہے قادر خدا، اپنی قدرت دکھا، اپنی قدرت دکھا۔ آج تجھ پر لگی ہر بشر کی نظر، جھولے ہر زندگی خالی دامن بھر۔ اے خدا پاک پانی پانی میں جیسے جنبش تیری، پانی پانی میں جیسے جنبش تیری، انبیاء پر کی روح کی بارش تیری، انبیاء پر
ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تجھے ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. اس شرف کے لیے، اس حق کے لیے، اس فضل کے لیے، اس توفیق کے لیے ہم تیری بڑائی اور تیری تمجید کرتے ہیں. انسانوں کے سچی توبہ کرنے کے نتیجے میں سر کے بالوں سے بھی زیادہ اس کے گناہ مفت میں بخش دینے کے لیے، مفت میں ایمان کے وسیلے سے نجات دے دینے کے لیے، گناہ کر کر کے ننگے ہوئے انسانوں کو راست بازی کے کپڑے پہنا دینے کے لیے، خلق پھیلا دینے کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس نئی انسانیت کے لیے جو ہم از خود نہیں پہن سکتے تھے، جو مسیح کے کفارے کی موت کے نتیجے کے طور پر ہمیں پہنائی گئی اور ہماری پرانی انسانیت مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گئی. اس بھید کے لیے، اس قدرت کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تبدیل شدہ زندگی کے لیے، نئے انسان بننے کے لیے، نیا مخلوق بن جانے کے لیے، پرانی چیزوں کا، پرانی زندگی کی ناپاک اور گندی خواہشات اور عادات سے ہمیں رہائی دے کر ایک نیا انسان بنا دینے کے لیے، ہم قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے، ہم گنگوں کو بولنے، دعا کرنے، حمد و ثنا کرنے، خوشی کے نعرے مارنے کے لائق کر دینے کے لیے آئے خداوند تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تیری ستائش اور تعظیم کرتے ہیں. ہمیں اکیلا نہ چھوڑنے کے لیے، دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کرنے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اپنی کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے ہم میں سے باری باری ہمیں نجات دے کر کلیسیا میں شامل کر لینے کے لیے اور اس کو دوبارہ اپنے پاس لے کر جانے کا وعدہ کر دینے کے لیے ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف اور ستائش کرتے ہیں. لہٰذا جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں ہماری مدد کرتا کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھ سکیں. ہم ایک ایسی کلیسیا بن جائیں جس کے روحانی چہرے پر کوئی داغ، دھبا اور جھری نہ ہو، بلکہ وہ سرتپا پاک ہو. ہماری مدد کر، ہماری مدد کر. دنیا کی روش سے ہمیں بچا، دنیا کی خواہشات اور چاہتوں سے، رنگ رلیوں سے، عیش و عشرت اور روپے پیسے اور چیزوں کی تمنا سے ہمیں بچا. خودی کی موت مرنے کا، خودی کا انکار کرنے کا، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش اور خیال میں رہنے کا ہمیں بڑا فضل عطا فرما. ہم تیرا شکر ادا کرتے اس ملک میں ہمیں پیدا کرنے کے لیے، اس ملک میں ہمیں بسانے اور قائم رکھنے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے ساری کلیسیا پر تیری برکت کا ہاتھ اور تیری شفقت کا ہاتھ اور تیرے تحفظ کی باڑ تیرے بیٹے بیٹیوں کے گرد مانگتے ہیں. اپنے ملک کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے حاکموں کے لیے، اختیار رکھنے والوں کے لیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں. خاص طور پر اپنے صدر وزیر اعظم کے لیے اور ملکی حالات کے لیے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مسائل سے نپٹنے میں ان کے لیے حکمت، دانائی اور فہم مانگتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں، تیری سچائی مانگتے ہیں، تیرا خوف ان کی زندگیوں میں ہو. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے مابین جنگ بندی کے لیے، لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. جتنے ممالک اور قائدین نے کاوشیں کی ہیں سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے مقدسوں کی دعاؤں کو سنا ہے، آگے کے لیے بھی ہم تیری طرف دیکھتے ہیں. خداوند اسی طرح سے ہم 1 مئی اور 2 مئی کو ہونے والے سیمینار کے لیے دعا کرتے ہیں. تیرے خادم اور اس کی اہلیہ کے لیے جب وہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے راولپنڈی سے تشریف لائیں تو خداوند انہیں کلیسیا کے ہر ایک خاندان کی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کیجیے.
اگلے اتوار جب وہ کلیسیا میں کلام کی خدمت سر انجام دیں تو ہمیں تیری طرف سے روحانی روٹی ملے، ہمیں تقویت اور تر و تازگی ملے۔ آج کی عبادت کو قبول کر، جس سے آپ نے جو خدمت آج کی عبادت میں لی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے دیے میں سے جو ہدیہ جات تیری حضوری میں گزرانے گئے ہیں، انہیں بھی اپنی الہی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنے لوگوں کو اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے کہ محتاجوں کو وہ دینے کے لائق ہو جائیں۔ تیرا شکر ہو اپنے جلال کی دولت کے موافق ہماری شخصی، خاندانی اور کلیسائی تمام ضروریات کو افراد سے پورا کرنے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر سے تسلی، خوشی، اطمینان اور تقویت اور تازگی دے کر، برکات دے کر رخصت کر۔ ہم تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، اسی طرح دنیا بھر کے تمام مقدسین کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین، آمین۔ سب کو سلام، عبادت برخاست ہے، جا سکتے ہیں آپ۔